Good evening, everyone. So today we are going to start with topic 2, case 2 regarding vapor pressure. तो इसमें देखेंगे हम vapor pressure of solution containing volatile solute. In case 1 what we have seen? We have seen vapor pressure of solution containing non-volatile solute. ठीक है, उसको हमने डिटेल्स में कर दिया था. Here we are going to discuss for volatile solute. Now we all have seen in case 1 also that solution is broadly classified into solute and solvent. Solute we have denoted by B and solvent by A. Here both are volatile. So all the 5 points what we have learned already in case of 1, we are going to see one by one. Nature of solute will be volatile. Solvent is also volatile here. When we talk about physical state, so if you remember in the previous case, when we have non-volatile solute, physical state of non-volatile solute we have taken as solid. But here we have to consider it to be liquid. Similarly, solvent we are considering to be in liquid form. हमारे सिलेबस में लिक्विड ही है. Vapor pressure, अब जरा ध्यान से देखो. If we have a closed container here, इसको हम डिटेल्स में भी देखेंगे. And in this we have solute as well as solvent, both in volatile nature. So whatsoever vapor pressure will be here, right? Vapor pressure will be because of A as well as B. That means solute as well as solvent, isn't it? So vapor pressure of B will be denoted by P naught B, and vapor pressure of solvent A will be denoted by P naught A. Now moles of B, we all can write weight of B divided by molecular weight of B. Similarly, moles of A can be written as weight of A by molecular weight of A. Mole fraction can be written as NB, that means number of moles of B. B is your solute divided by moles of solute plus moles of solvent, and similarly mole fraction of A can be written as moles of A divided by moles of A plus moles of B. If we compare this entire topic with case A, the only difference we have is here. In case of non-volatile solute, this we have taken as 0. Physical state we have taken solid, isn't it? And this is your non-volatile in case 1. So these are the 3 differences we have from case 1 that we have to discuss in details. अब जरा ध्यान से देखिए, in like case 1, here also what we have, mole fraction of A plus mole fraction of B will be always equal to 1. इसको डिटेल्स में देखते हैं अभी. Now see, here we have pure solvent A and pure solute B. Both are volatile. For easy understanding, what I have done, I have selected this in a bigger size, right? Solvent particle in a little bigger size, and here this B is in a smaller size. अब जब ध्यान से देखो इसको, when A will be in pure form, vapor here produced will be only of A. Similarly, when only pure B we have, that is your solute, vapor created here will be only because of B. So whatsoever vapor pressure is generated here can be denoted as P naught A, vapor pressure in pure form. Similarly, in second case, vapor pressure will be denoted as P naught B. Now, when A and B, both volatile solute and solvent are mixed to form a solution, we will get this type of system. अब ये देखो, ये भी surface है, liquid surface, isn't it? And now on this liquid surface, both AB will be present. ठीक है, दोनों हैं इसमें. एंड इन वेपर फेज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी बोथ आर प्रेजेंट. हमें नहीं पता है कि किसका कितना परसेंटेज है, किसका कितना कंपोजिशन है, बट बोथ आर प्रेजेंट इन वेपर फेज. सो व्हाटसएवर वेपर प्रेशर विल बी एक्सर्टेड हियर ऑन द सरफेस विल बी बिकॉज ऑफ ए एज वेल एज बी. तो यहां पे जो भी वेपर प्रेशर है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? पीएस से और पी टोटल से विल बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी. ये क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, हमने एज्यूम किया है कि लेट अस एज्यूम दैट A is more volatile than B. वाइस वर्सा भी हो सकता है. We have taken A is more volatile than B. Let A is more volatile. So definitely more volatile means this will go more in vapor phase. अगर मैं इस केस की बात करूं, अगर A ज्यादा volatile है तो A जल्दी से जाएगा वेपर में, and more vapor pressure will be created here because of A. So we can write P naught A will be greater than P naught B. Done. PS, this is the vapor pressure of solution. अब जरा खुद सोच के देखो, यहां पे जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ.
अगर ये ज्यादा वोलेटाइल है तो यहां जो भी प्रेशर क्रिएट होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन पी नॉट ए, लेस देन, एंड इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन पी नॉट बी। कभी भी हम दो नंबर का एवरेज निकालते हैं, सो इट कैन नॉट गो बिलो दिस लोअर नंबर एंड इट कैन नॉट एक्सीड द बिगर नंबर, ग्रेटर नंबर, इजंट इट? इन दोनों के बीच में ही होगा। सो ऑब्वियसली दिस पीएस व्हाट वी आर टॉकिंग इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन will be always in between P naught A and P naught B, where PS is greater than P naught B and PS is less than P naught A। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि P naught B is less than PS but it is greater than P naught A when we have A is more volatile। अगर ये vice versa होता, अगर B is more volatile होता, then this P naught B will be here and P naught A will be here। यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? इसके और भी हम एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा, क्लियर? तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि PA इज योर वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन एंड PB इज योर वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन, ठीक है? एंड PA इज व्हाट? ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड दिस। PA इज इक्वल टू P नॉट A XA एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। हेनरीज लॉ में यही हमने पढ़ा था ना कि PA इज इक्वल टू P नॉट A XA एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B XB, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे PS जो हमने लिखा था वो क्या था? PA प्लस PB। अब दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। एक तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे? वी ऑल नो दैट XA प्लस XB दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B को मैं क्या लिख सकता हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ A को भी लिख सकते हैं हम 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, या फिर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ B के टर्म में भी लिख सकते हैं। एक ये आ जाएगा, इसको पुट कर दीजिए यहां उठा के, तो हमारे पास यहां से जो डेरिवेशन निकल के आएगा दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये चीज क्लियर हो गया? इसको मैं याद करने का ट्रिक बता देता हूं आपको, ध्यान रखना। व्हेन वी डिस्कस इन टर्म्स ऑफ B, अगर मोल फ्रैक्शन B के टर्म में अगर मैं बात कर रहा हूं देन डेफिनेटली इट विल स्टार्ट एज A B A B। अगर इसी को मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A के टर्म में लिखूं, आप डिराइव कर लेना इसको, P नॉट B प्लस ये हो जाएगा P नॉट A माइनस P नॉट B और ये हो जाएगा अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये हमारे पास तीन एक्सप्रेशन आ गए और तीनों एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें और इस पे जरा ध्यान से समझिए पहले। अगर मैं PS की बात करूं, दिस इज इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है? यहां से हमने निकाला PS इज इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB। दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सब एनसीईआरटी में पॉइंट आपको दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन कंपोनेंट ऑल्सो। सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर। क्लियर? यू कैन सी वी कैन डिराइव दिस वेपर प्रेशर ओनली फ्रॉम मोल फ्रैक्शन ऑफ B और वी कैन डिराइव फ्रॉम मोल फ्रैक्शन ऑफ A। पहली पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। सेकेंड, इफ यू सी दिस इक्वेशन वी हैव y इक्वल टू mx प्लस c टाइप ऑफ इक्वेशन। y इक्वल टू mx प्लस c क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू mx प्लस c क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तो इसके ऊपर जो ग्राफ आता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट बाद हम पहले ग्राफ देखते हैं और उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ग्राफ देख लेते हैं इसका। PA इज इक्वल टू P नॉट A XA एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ये हमारा वेपर प्रेशर इधर है और ये मोल फ्रैक्शन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट केस। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A की बात करूं, लेट इनिशियली इट बी 0। अगर XA की वैल्यू 0 दैट मींस PA मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां से स्टार्ट हो जाएगा ये। एंड व्हेन XA इज इक्वल टू 1, PA की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी P नॉट A, है ना? इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह का कुछ ग्राफ मिल जाएगा हमें। ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी? मैं प्योर की बात कर रहा हूं, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? कंपोनेंट A है। सिमिलरली अगर मैं इस केस में बात करूं, अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया है जिसमें हमारे पास A एंड B बोथ आर वोलेटाइल, इन दैट सिचुएशन वी हैव XA XB बोथ। तो इन केस ऑफ XB हियर ये मोल फ्रैक्शन है, वेपर प्रेशर है। सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 0, हमने अभी क्या देखा था?
mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1. If this is 0, definitely mole fraction of B will be 1 here. And when this is 1, mole fraction of B will be 0. Ye clear? Now, when we put mole fraction of B is equal to 1, we have PB is equal to PB naught और P naught B, ये हो गया हमारे पास वैल्यू. And when we put mole fraction of B is equal to 0, then we will get PB is equal to 0. तो ये कुछ इस तरह से डिसेंडिंग कर्व मिल जाएगा. अब एक चीज ध्यान देना, वी हैव कंसीडर्ड P naught A ग्रेटर देन P naught B. ठीक है ना. इसी को पॉइंट को दिमाग में रखते हुए वी विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट सॉल्यूशन. अभी हम थोड़ी देर में पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं कि ये तो इंडिपेंडेंट हमारे किसके केस में हो गए, प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट. बट व्हेन वी डिस्कस फॉर सॉल्यूशन, जब इन दोनों को हमने एक सॉल्यूशन में बना दिया मिक्स करके, देन व्हाट टाइप ऑफ और विच टाइप ऑफ ग्राफ एंड विच टाइप ऑफ वेरिएशन वी विल गेट. वो y इक्वल टू mx प्लस c अभी जो हमने इक्वेशन लिखा था ना, उससे हम उसका भी ग्राफ बना लेते हैं. क्लियर? नाउ सी, आई हैव रिटन द सेम एक्सप्रेशन अगेन. राइट, दिस इज योर PS is equal to P naught B plus P naught A minus P naught B into XA, that is mole fraction of A. और same equation we can write in terms of mole fraction of B. ये दोनों एक्सप्रेशन अगर देखें तो इसमें y equal to mx plus c टाइप ऑफ ग्राफ मिलेगा. अब इसको हम एक सॉल्यूशन बना देते हैं where we have added both. अब जरा ध्यान से देखो, when we are taking vapor pressure versus mole fraction, तो initially let we are considering about variation with respect to mole fraction of A. At initial point when mole fraction of A is equal to 0, mole fraction of A is equal to 0, अगर मैंने इसको 0 पुट कर दिया, then this entire term will be equal to 0. So we will get PS is equal to P naught B. So यहां पे कहीं पे हमारे पास जो हमारे पास इनिशियल आएगा वैल्यू हो जाएगा P naught B. Right? When mole fraction of A is equal to 1, जब हमारे पास mole fraction of A कितना हो जाएगा 1. अगर यहां पे मैं 1 पुट कर दूं, when we put 1, then we will have P naught B plus P naught A minus P naught B. तो P naught B cancel, we will get value P naught A. अब सोचने वाली बात ये है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि we are considering A as more volatile, so P naught A is greater than P naught B. क्योंकि यहां पे जो हमारे पास P naught A की वैल्यू आ रही है ना, when we put x is equal to 1, xa is equal to 1, then this value and this value will be cancelled. We will get only P naught A. So this can be anywhere on this line. Where we should keep? Definitely it will be at a higher height than P naught B, because P naught A is greater than P naught B, because A is more volatile than B. We have considered case 1. तो यहां पे मैं कहीं पे मार्क कर देता हूं इसको, और ये हमारे पास हो गया P naught A. Y इक्वल टू mx प्लस c टाइप ऑफ ग्राफ है, तो कुछ नहीं करना, इसको लेकर के सीधा इसको ऐड कर देना. हो गया? ये हमारे पास क्या हो गया, इनिशियली व्हेन वी हैव ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ B, क्योंकि यहाँ पे x से 0 है, ये कब हो गया 1, वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ A. इन बिटवीन दिस वी विल हैव व्हाट, बोथ. दैट मीन्स यहां पे हमारे पास जो भी वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ A एंड B बोथ. Now if we see the first case, कौन सा केस, जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन था P is equal to P naught A XA, प्योर फॉर्म. तो इस केस में और इस केस में, मतलब इन दिस केस एंड दिस ग्राफ देयर इज अ डिफरेंस. यहां पे हमारा ओरिजिन जो था वो 0 से था. ठीक है, यहां पे देखो वी हैव सर्टेन हाइट, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर. तो कुछ नहीं करना है, द ग्राफ विच वी हैव ड्रॉन, we can write this is your PA and this is your PB, P naught B XB. इसी में उसको प्लॉट करता है, हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाएगा. इफ वी प्लॉट फॉर PA when XA is equal to 0, फाइनल वैल्यू विल बी P naught A, यहीं पे वैल्यू होगा. एंड when XA is equal to 1, sorry when XA is equal to 0, we have P naught equal to 0, मतलब यहां से स्टार्ट होगा. एंड when XA is equal to 1, PA is equal to P naught A. मीन्स ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा. सिमिलरली TB इज इक्वल टू P naught B XB. जब XB की वैल्यू 1, तो हमारा स्टार्ट कहां से होगा, P naught B से. ये बिल्कुल देखो, मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है. इट्स वेरी सिंपल. व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम B, राइट, XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 1, दैट मीन्स ओनली वी हैव प्योर सॉल्यूट.
तो उस केस में जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ बी की वजह से होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, पी नॉट बी। जैसे जैसे इसका कंपोनेंट बढ़ेगा ये कम होता चला जाएगा, कहां तक, ये आकर के यहां मिल जाएगा। दिस इज योर पीबी एंड दिस इज योर पीए, और यही आपके एनसीईआरटी में समझाया हुआ है डिटेल्स में। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। दिस इज योर पी नॉट बी एक्स पी एंड दिस इज योर पी नॉट ए एक्स ए। इसको नोट कीजिए, इसके ऊपर और भी बातें करेंगे थोड़ी बहुत, और उसके बाद वो मेटल करता है इसके ऊपर। So based on this three equation, one question I have given here. See, we have A and B two components. ठीक है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, हमें पता नहीं है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, क्योंकि मोल्स दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, we have A and B. Of A we are taking 2 mole and B we are taking 3 mole respectively. Right? Both are in the liquid phase. Both are volatile. So P naught A is given 200 mm of Hg. ठीक है, ये 200 mm of Hg है, and this is given P naught B is equal to 500 mm Hg. ठीक है, कैलकुलेट PA। तो आसान सा है, यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है, वेपर प्रेशर। तो हम क्या करेंगे यहां से, इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, बट फॉर दैट वी नीड मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन आसानी से निकल जाएगा। सपोज इफ वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो 2/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ B सिमिलरली व्हाट वी विल गेट, 3/5। अब किसी भी एक को उठा करके मान लीजिए इसी एक्सप्रेशन से हम सॉल्व कर लेते हैं। PS इज इक्वल टू P नॉट B, P नॉट B की वैल्यू कितनी है, 500, प्लस P नॉट A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 200, माइनस 500 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हुआ, माइनस 300, यहां पर प्लस में, ये हमारे पास आएगा 9/, इसको सॉर्ट आउट कीजिए ना, फटाफट कीजिए। ये हो गया हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा 900/5, इसको सॉर्ट आउट कीजिए। ये माइनस में आ रहा है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमारे पास जो होगा पॉजिटिव में होगा। I have taken wrong here. I think this will be, we are taking this formula, X से we have to take 2, right? So ये आप सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू हमारे पास जो आएगा PS का, वो निकल के हमारे पास आ जाएगा। I think एक बार चेकआउट करो इसको। P नॉट B 500, P नॉट A 200, माइनस 500, 2/5। ठीक है, यहां से इसको कैलकुलेट कीजिए। ये 120 हो जाएगा, 500 माइनस 120, ये 380 mm ऑफ Hg आ जाएगा। इसको हम यहां से भी निकाल सकते थे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन दोनों के दिए हुए हैं, तो आप यहां से भी ले सकते हैं। P नॉट A इंटू एक्स है, 2/5 है, P नॉट A की वैल्यू कितनी है, तो किसी भी एक फॉर्मूला से हम यहां से PS निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स भी हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, एक एक करके हम उसको देखेंगे। इसी को जरा क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे तो कुछ आपको कैलकुलेट करने की ज्यादा टेंशन है नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। P नॉट A is known, P नॉट B is known, moles are given, so we can easily calculate mole fraction. We have to calculate this. तो इसमें तो आसानी से हो गया, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई किया जाए, ठीक है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, लिखिए इसको। सपोज इफ वी हैव, यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, कैलकुलेट एक्स से इफ हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल्स पता नहीं है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। इफ P नॉट A इज गिवन 200 mm ऑफ Hg, इसी क्वेश्चन की तरह से P नॉट B मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 400 या 500 ले लीजिए, इसी क्वेश्चन की जैसे 500 mm ऑफ Hg, एंड वेपर प्रेशर का फाइनल वैल्यू दिया हुआ है सॉल्यूशन का हमारे पास 420। देखिए एक चीज तो क्लियर है, ये कई बार ना डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन में ये काम आ जाएगा आपके, मोर देन 60 to 70% क्वेश्चन इससे हो जाता है। कैसे, हमेशा ध्यान रखना पीएस की जो वैल्यू आएगी ना बेटा,
क्रॉस वेरीफाई कर लेना, इट विल बी इन बिटवीन पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, इन दोनों के बीच में ही होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पे बी ज्यादा वोलेटाइल है, ए कम वोलेटाइल है। क्लियर है? सो डेफिनेटली कई बार क्वेश्चन में तुमसे ये कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा एंड दे कैन आस्क व्हिच वन इज मोर वोलेटाइल। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ज्यादा होगी वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। डन। अगर ये डेटास दिए हुए हैं तो हम क्या करते हैं कई बार, अब यहां पे देखिए पी नॉट बी, पी नॉट ए, पी नॉट बी और पी एस। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से हम सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करके देखिए हमारे पास क्या आता है। पी एस की वैल्यू दी हुई है 420 इज इक्वल टू पी नॉट बी 500 प्लस, रुकिए मैं इसको यहां क्लियर लिख देता हूं। दिस आर द डेटा, यू जस्ट कॉपी फर्स्ट। शायद ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो PS इज इक्वल टू 420, दिस इज इक्वल टू 500 प्लस 200 माइनस 500। अब ये हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो निकल के आएगा वो हमारा आएगा 4/15। आप इसको सॉल्व करके देखिए। लेकिन क्या हर बार ये मेथड काम आएगा या फिर इसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक्स है? तो मैं एक चीज बता दूं आपको, जब भी एवरेज, ये एक तरह से एवरेज तो हम निकाल रहे हैं, ये हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। तो अगर एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, ठीक है, जो हमारे सर हम लोगों को पढ़ाया करते थे, मैं आपको बता देता हूं, ये ट्रिक बहुत काम आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कि कभी भी अगर मान लीजिए हमें वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है, या फिर हमारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो गया, या फिर एवरेज एटॉमिक मास हो गया या एटॉमिक वेट, ठीक है, या फिर हमारे पास एवरेज या मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग हो गया, ठीक है, मोलारिटी कैपिटल है, या इस तरह से डेंसिटी हो गया, अगर दो चीजों की इस तरह से, ये सारे के सारे अगर इस तरह के फॉर्म में अगर आ गए, तो इसके केस में हम क्या करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं, ये हर जगह एप्लीकेबल है। जैसे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था, इसके लिए मॉडुलस ऑफ, ध्यान से रखना इसको, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल टेक ए एवरेज। ए एवरेज मीन्स हम यहां पे जो भी हमारे पास पीएस आ रहा है उसको हम एवरेज मान के चल रहे हैं, किसका, पी नॉट ए और पी नॉट बी का। सो ए एवरेज माइनस, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, सॉरी ए निकालना है, तो यहां पे जो भी हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आएगी वो हम किसका लेंगे, बी का, एंड दिस डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। ये हमेशा ये ध्यान रखना, मॉडुलस मैंने इसलिए लगाया है, कौन बड़ा है कौन छोटा है उससे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपको डेटा दिया हुआ था, अगर मैं लिखूं यहां पे फटाफट पी नॉट ए, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की डेटा लिखूं तो हमारे पास क्या था, पी नॉट ए, पी नॉट बी और पी एस। पी नॉट ए हमारे पास 200 दिया हुआ था, ये 500 दिया हुआ था और ये हमारे पास 420 दिया हुआ था, है ना। अब जरा इसको अप्लाई कीजिए इस इक्वेशन में। अगर मैं यहां लिखूं तो एवरेज हमारे पास, एवरेज मीन्स इन दोनों के बीच वाला जो है पीएस, ये कितना हो गया 420 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो यहां हम किसकी वैल्यू लेंगे, किसकी वैल्यू, पी नॉट बी की वैल्यू लेंगे, मोड ऑफ दिस डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 500, इसका मोड ले लेंगे। ये हमारे पास 80/300, 80/300, ये कैंसल 4/50। इसकी फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई। ये ट्रिक जो मैंने बताया ना आपको, ये हर जगह एप्लीकेबल है। या तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर निकाल रहा है, ध्यान रखना, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहा है तो ए एवरेज माइनस बी। अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछा होता तो यहां पे क्या होता है, ए एवरेज माइनस ए, और यहां पे तो ए माइनस बी ही होता हमेशा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर फटाफट इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, ये और क्लियर। Okay, so see this question based on that formula, then mole fraction of A can be calculated by A average minus B mode of this divided by mode of A minus B. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, see, two volatile liquids are mixed. Here P naught A is given, P naught B is also given, and P is also given.
Right? Why this type of question we are practicing? Because sometimes directly question will be asked for mole fraction without giving the moles, number of moles of solute and solvent. तो वहां पे फिर क्या होता है, बच्चे परेशान होने लगते हैं. तो ये ध्यान से देखना, A average that we have taken what? Vapor pressure of solution. So if I write here directly, mole fraction of A is equal to mode of 360 minus, when we have to calculate mole fraction of A, we have to take B. B means P naught B divided by, here we have mode of A minus B. A is your 300 and this is your 400. This value is equal to, here you will get 40 by 100 or 0.4. So if mole fraction of A is 0.4, definitely mole fraction of B is equal to what? 0.6. तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. Quickly we will see one more question. Right? This type of questions are very simple. Until and unless we are knowing this formula, we cannot solve it. तो ये formula हमेशा ध्यान रखना बेटा कि XA, that is the mole fraction of A, can be written in terms of A average minus B. और मैंने कल भी बोला था कि this formula we can apply for molecular mass when we have to calculate average molecular mass, average atomic mass, molarity. In case of molarity of mixing also we have applied this formula. फटाफट इस क्वेश्चन को देखते हैं. Suppose we have to calculate mole fraction of B. ठीक है, यहां B से स्टार्ट कर लेते हैं. क्या हो जाएगा यहाँ पे? A average, average क्या हमारे पास? 470 minus. Now we are calculating B, so we have to take P naught A, that is your 300 divided by mode of this 300 minus 500. Automatically how much it will be? This will become 170 divided by 200, 17 by, इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसको. अगर 17 by 20 हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो गया, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी व्हाट? 3 by 20. हो गया, फटाफट सॉल्व. क्लियर? Okay. Next topic is very very important because here we have to discuss about vapor pressure in terms of, right? अब देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिए यहाँ पे जब हमने प्योर लिक्विड लिया, राइट, A and B both are volatile. So whatsoever vapor pressure we are calculating, or let us first talk about mole fraction. Whatever mole fraction we are writing here, XA and XB, these mole fraction are mole fraction of A and B in liquid phase respectively. These mole fraction are in case of liquid, fine. But when these particles A, B, I have taken A in bigger size, right? We are considering that A is more volatile here. So when they vaporize and they go in vapor phase, here the vapor pressure, mole fraction in this case in vapor phase will not be same. अब जरा थोड़ा 11th क्लास में चलते हैं बेसिक. रॉल्स लॉ जब हम लगा रहे थे तो ये कब लगा रहे थे? वेपर प्रेशर के लिए. डाल्टन्स लॉ किसके लिए होता है? ये तो लिक्विड फेज में, बट ये किसके केस में होता है? ये गैसेस फेज में होता है, डाल्टन्स लॉ. ठीक है ना, पढ़ा होगा हमने. पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन. या फिर एक फॉर्मूला हमने वहां पढ़ा था, summation of all the partial pressure is equal to total pressure. P total is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 till Pn. राइट? अब जरा ध्यान से देखो इसमें. यहां पे जो भी हमारा मोल फ्रैक्शन है ये प्योर लिक्विड स्टेट में, बट यहां पे जो भी इनका मोल फ्रैक्शन होगा, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट मोल फ्रैक्शन इन दिस एंड दिस पार्ट विल बी सेम. हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B will be different. Why it will be different? Because here they are in liquid phase and here they are in gaseous phase. और इसका रीजन यह है कि when they vaporize, ध्यान से समझना इसको, may be possible 5 particles are vaporized from here, right? और हो सकता है कि ऊपर जाने के बाद कुछ कंडेंस भी हो रहा है, right? Few may be, because of molecular mobility, right? जो भी उनके काइनेटिक एनर्जी कम होंगे तो ऑब्वियस बात है कंडेंसेशन प्रोसेस इज पॉसिबल. तो इसके वजह से यहां पे जो भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन आएगा इन वेपर फेज, दैट विल बी नॉट एग्जैक्टली सेम एज दैट इन लिक्विड स्टेट. तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? AY एंड और YA एंड YB के टर्म.
इसको फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद इस पे और बहुत सारी बातें करेंगे। दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। ठीक है, दिस इज इन लिक्विड फेज एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। यहां तक पहले लिख लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, जैसे मोल फ्रैक्शन के टर्म में हमने बात किया था, यहां भी हमें वो फॉर्मूला ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। चलिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हमने अभी तक क्या देखा हुआ है? वी हैव P इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। और अगर याद हो हमें तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ हमने क्या पढ़ा है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ वी हैव सीन पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो केस वाइज केस अगर हम देखें, ठीक है ना, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि अगर जो ए एंड बी है एंड आउट ऑफ ए एंड बी सपोज ए इज मोर वोलेटाइल, तो इफ ए इज मोर वोलेटाइल डेफिनेटली वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ ए विल बी मोर। तो एक एक करके केस वाइज अगर मैं देखूं यहां पे, अगर मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए ए के केस में, ठीक है, तो फॉर ए we can write PA is equal to YA हमारा क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन। किसके केस में? हम यहाँ पे डाल्टन्स लॉ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गैसेस फॉर्म में बात कर रहे हैं, वेपर फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो PA कैन बी रिटन एज YA इंटू P। ये हमारा P क्या है यहाँ पे? ये टोटल प्रेशर है। ये ध्यान रखना, कई सारे बुक में आपको PT भी लिखा हुआ है, ऐसे मिल जाएगा। ये हमारे पास टोटल प्रेशर है, राइट। उसके बाद यहां पे हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, पीए के लिए हमने क्या लिखा हुआ था स्टार्टिंग में? पीए इज नथिंग बट पीए इज योर पी नॉट ए एक्स ए एंड दिस इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी। और यहां से अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करूं इन वेपर फेज, दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी। एक इक्वेशन तो ये आ गया निकल के हमारे पास। सिमिलरली अगर मैं पीबी की बात करूं तो पीबी कैन बी रिटन एज वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इनटू प्रेशर, टोटल प्रेशर। पीबी क्या था हमारे पास? ये हमारे पास था पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी। और यहां से मैं जब वाई बी निकालूंगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, दिस कैन बी रिटन एज पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई पी। तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन यहां से निकल के आ गए। अब हमें पता है कि वाई ए प्लस वाई बी क्या था? वाई ए प्लस वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन केस ऑफ वेपर फेज विल बी इक्वल टू 1। तो इनको सम करके एक और हम रिलेशन निकाल देते हैं, इसको नोट कीजिए पहले, ठीक है। वाई ए प्लस वाई बी दिस इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर लेते हैं यहां से। हमारे पास क्या आएगा? पी नॉट ए एक्स ए बाई पी प्लस पी नॉट बी एक्स बी बाई पी, दिस इज इक्वल टू 1। यहां से भी कई सारे क्वेश्चन हमारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 था हमारे पास, ठीक है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी के टर्म में भी इसको हम डिराइव कर सकते हैं, है ना। एक्स ए और एक्स बी के टर्म में मीन्स यहां से अगर मैं निकालना चाहूं, जरा ध्यान से देखिए, एक रिलेशन ये निकल के आ जाएगा। एक्स ए हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से? अगर मैं यहां से एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर मैं लिखूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। और यहां से अगर मैं देखूं एक्स बी क्या था हमारे पास? एक्स बी इज नथिंग बट वाई बी इंटू पी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 था। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं एक्स ए प्लस एक्स बी, तो दिस इज इक्वल टू वाई ए पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए प्लस वाई बी पी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी। अब ये क्या है हमारे पास? दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 1।
तो कैन वी राइट 1 इज इक्वल टू YAP डिवाइडेड बाई P0A प्लस YBP डिवाइडेड बाई P0B। अब यहां दोनों जगह से P कॉमन ले लीजिए और कॉमन लेकर के हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई P इज इक्वल टू YA दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिवाइडेड बाई P0A प्लस YB डिवाइडेड बाई P0B। और ये हमारे पास हो गया थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन हमेशा ध्यान में रखना है। और इसके ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा इसका ग्राफ देख लेता है, उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं सिमिलर वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं वेपर फेज में, अगर यहां पे मैं YA ले लिया तो इनिशियल इफ इट इज 0 हियर एंड हियर इट इज 1, इसका क्या मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A हियर इज मैक्सिमम दैट इज 1। इनिशियल स्टेट अगर मैं फॉर्मूला से अगर मैं देखूं जो हमने डिराइव किया था यहां पे थोड़ी देर पहले, YA इज इक्वल टू P0A XA डिवाइडेड बाई P। अगर मैं इस फॉर्मूला से बात करूं तो व्हेन YA इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है, ठीक है, या फिर इस एक्सप्रेशन से भी आप देख सकते हैं, अगर ये 0 है तो दिस इंटायर वैल्यू विल बी 0। तो 1 बाई P इज इक्वल टू YB अपॉन P0B, यहां से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अगर जब ये 0 है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बेटा ये हमारे पास P0B के बराबर, PB विल बी इक्वल टू P0B। एंड व्हेन YA इज इक्वल टू 1, YA की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो एट दैट टाइम मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी 0। तो यहां पे P0B है और यहां पे क्या हो जाएगा, इस पे P0A। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन प्रीवियस केस ऑल्सो इन लिक्विड फेज वी गॉट द सेम टाइप ऑफ वैल्यू P0B एंड P0A जब हमने XA के टर्म में बात किया था। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर यहां पे मैं बात करूं तो YA इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो मैंने पहले भी समझा रखा है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ग्राफ इन सॉल्यूशन चैप्टर या फिर केमिस्ट्री में, तो या तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा या फिर हमारे पास कर्वेचर मिलेगा। यहां पे हमें स्ट्रेट लाइन तो मिलेगा नहीं, तो ये एक ऐसा कर्वेचर होता है, ये थोड़ा सा ऐसा घूमता हुआ जाकर के ये ऐसे मैच हो जाएगा। इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, थोड़ा एक कर्वेचर होगा। लेकिन ग्राफ अभी भी कहां से कहां तक होगा, P0B से P0A के बीच में। क्लियर ये चीज? चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन इसको, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अभी तक हमसे मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन ने क्या पूछा था, सिंपली कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। So it's self-understood when question is asked for mole fraction, we are asking or we are talking about XA and XP. That means in pure liquid phase. यहाँ पे क्या है हमारे पास, we are talking about vapor phase. That means YA and YB we have to calculate. अब ध्यान से देखो, in this question P0A, P0B, NA and NB, these values are given. तो यहाँ से XA और XB तो आ जाएगा, लेकिन how to calculate YA and YB? उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें वहां पे PA निकालना पड़ेगा। तो PA can be written as what? P0A XA प्लस P0B XB। और फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। P0A 100, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 2/5 प्लस P0B 150 इंटू 3/5, इसको सॉल्व कीजिए, कितना जाएगा, 40, और ये हो गया 90। दैट मीन्स PA इज इक्वल टू, और P इज इक्वल टू 130, ये mmHg में सब दिया हुआ, तो 130 mm ऑफ Hg। अब अगर हमारे पास PA आ गया तो कैन वी डायरेक्टली अप्लाई YA इज इक्वल टू, ये ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला हर जगह यूज हो जाएगा। YA कैन बी रिटन एज P0A इंटू XA डिवाइडेड बाई P। यही तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। P0A इज नोन टू अस 100, XA ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 2/5, दिस डिवाइडेड बाई P 130, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 20/65, और दिस कैन बी मोर सिंप्लीफाइड 4/13। चेक करके देखो एक बार, ठीक है। इफ YA इज 4/13, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ YB, 9/13। सॉल्व करने की जरूरत है क्या इसमें? तो इस मेथड से तो हमने सॉल्व किया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे तो क्या हमें इतना करने की जरूरत थी, ये सोचने वाली बात है।
हमारे पास जो फॉर्मूला है, क्या हम उस फॉर्मूला से कुछ रिलेशन डिराइव कर सकते हैं? तो इस ट्रिक को एक बार समझो। ये तो प्रोसेस आई थिंक इट इज क्लियर, ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट वी हैव टू डू। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट p, because in this formula ya is equal to p naught a xa divided by p, we have to apply this formula। इस फॉर्मूला से तो हमने कैलकुलेट किया, बट देयर इज अ ट्रिक, इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक भी है, उसको देखते हैं जरा। इट्स वेरी सिंपल, व्हाट वी हैव टू डू, सी py, or let us write in terms of ya and yb। ya we have written p naught a xa divided by p, और yb क्या था हमारे पास, yb is equal to p naught a xb, सॉरी p naught b xb by p। क्या हम इन दोनों को डिवाइड कर दें? अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या, जिसमें हमने टाइम वेस्ट किया? तो ये तो सॉर्ट आउट हो गया। अच्छा, एक से क्या था हमारे पास, एक से था मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, और यहां पे ये क्या था, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। देखो कितना आसान है, ये सब छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में काफी काम आती है। फिर तो हमारे पास से ये भी कैंसिल हो गया, तो एक यहां से जो जनरल एक्सप्रेशन निकल के आता है, ये तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो, दैट ya कैन बी रिटन एज p नॉट a into na, that is moles of a, divided by this yb, this can be written as p naught b into nb। ये एक्सप्रेशन एक डिराइव्ड रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसे चेक करके देखो। p नॉट a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितना बेटा, 100, मोल्स ऑफ ए 2 डिवाइडेड बाई p नॉट b 150, और इसकी मोल्स कितनी दी हुई है 3। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू कितना गया 20 by 30, और वी कैन राइट 2 by 3, सही है, सॉरी नॉट 30, 20 by 45, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 by 9। अगर हमारे पास मोलर रेशियो ए और बी का 4 by 9 है, तो क्या हम मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं कि जो ya का मोल फ्रैक्शन है दैट विल बी 4 by 13, क्योंकि ये तो मोल्स हो गया ना एक तरह से, दोनों का मोलर रेशियो 4:9, तो टोटल मोल्स कितना हो गया, 9 + 4 13, तो 4 by 13 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी 9 by 13। तो इस ट्रिक से हमारा फटाफट सॉल्व हो जाता है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, इससे काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देता हूं, फटाफट इसको कर दो। देखिए इसको, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इन वेपर फेज इफ गिवन सॉल्यूशन हैज vapor pressure 120 torr, P naught toluene is given 50 and P naught for benzene is given 150 torr respectively। तो इस केस में हमसे क्या पूछा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के लिए यहां पे लिखूं YB, दिस इज इन वेपर फेज, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है वी हैव टू कैलकुलेट इन वेपर फेज, तो YB कैन बी रिटन एज P naught B into मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई P, और अगर मैं टॉलिन की बात करूं तो YT कैन बी रिटन एज P naught T मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन डिवाइडेड बाई P। अब प्रॉब्लम यह है कि अब मोल फ्रैक्शन कहां से आया, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, मोल फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज A एवरेज माइनस, अगर हमारे पास B का निकालना है तो यहां पे A आ जाएगा डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ A माइनस बी। एवरेज का मतलब क्या है यहां पे, वेपर प्रेशर, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी किया था हमने, तो एवरेज 120 माइनस, अगर मैं यहां बेंजीन का निकाल रहा हूं, मान लीजिए हमने बी यहां बेंजीन को रिप्रेजेंट किया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बेंजीन, देन व्हाट वी हैव टू टेक A, टॉलिन की वैल्यू यहां लेनी है 50, मोड ऑफ दिस डिवाइडेड बाई A माइनस बी, A माइनस बी वैल्यू विल बी 100, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगा बताइए 70/100, or this will be 7/10। If mole fraction of benzene is 7/10, then mole fraction of toluene will be what, 3/10। यहां से मोल फ्रैक्शन आ गया, अब इसमें पुट कर लीजिए, जैसे हमने इसमें पुट किया, ये हमारे पास, ये लिख लो यहां पे 7/10 and 3/10 is the mole fraction of benzene and toluene। अब देखो आसान सा बन गया क्वेश्चन। अब तो P naught B ऑलरेडी गिवन, बेंजीन के लिए 150
इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है ये 7/10 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 120 है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 120। इसको अपना सॉल्व करते रहना आराम से। पी नॉट की टॉलिंग के लिए हमारे पास कितना बेटा 50 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है इसके लिए 3/10 और ये कितना था 120। ये भी आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा अपने पास 2, ये हो गया हमारे पास 3/24। अगर ये 3/24 है तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास कितना जाएगा 21/24। ठीक है ना, 5 से कैंसिल हो जाएगा 21/24। इस तरह से सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन इन सॉल्यूशन चैप्टर आर वेरी सिंपल इफ यू नो द फॉर्मूला, राइट। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस थोड़ा सा इधर उधर घुमाता है कभी कभी, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एंड देन वी विल गो थ्रू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन आसान है। देखो इसको, अ सॉल्यूशन ऑफ 2 volatile लिक्विड follows Raoult's law at certain temperature. ठीक है, वेपर प्रेशर above solution is 400 mm of Hg। टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 400 mm of Hg। तो गिवन हमारे पास क्या है P is equal to 400। मोल फ्रैक्शन ऑफ A in वेपर फेज, मतलब YA की वैल्यू भी गिवन हमारे पास कितना बेटा 0.45 एंड in liquid phase that means XA is given 0.65. Calculate vapor pressure of both liquid in pure state at the same temperature। मतलब हमें निकालना क्या है, this we have to calculate P0A and P0B, this is equal to what। एक बार गिवन लिख लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा कि हाँ किस फॉर्मूला से सॉल्व होने वाला है। अब जरा देखो, इन दिस क्वेश्चन इफ YA is given 0.65, तो क्या यहां से ये डेटा हिडन है कि YB will be equal to 0.55, दोनों का समेशन 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ A अगर हमारे पास लिक्विड स्टेट में दिया है तो ये हमारे पास XA दिया है, तो XB कितना हो जाएगा, XB will be equal to 0.35। बहुत डेटा जा रहा हिडन। यहां से अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं जो हमने अभी डायरेक्ट किया था। YA is equal to P0A XA divided by P। What we have to calculate? This value we have to calculate। लिखो इसको P0A, इसको क्या लिख सकते हैं YA into P divided by मोल फ्रैक्शन ऑफ। क्लियर? ये इधर आ गया, इसको डिवाइड कर लेंगे, इसकी वैल्यू आउटपुट कीजिए। YA की वैल्यू 0.65 राइट, इनटू P की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाई इसकी XA की वैल्यू 0.65। ये तो कैंसिल आउट, ये हो गया अपने पास 9 और ये हो जाएगा 13, 3600 बाई 13। ये एक वैल्यू निकल के आ गया P0A का। सिमिलरली अब अगर मैं P0B निकालना चाहूं, P0B, तो P0B के लिए हमारे पास जो रिलेशन आएगा यहां से देखिए, YB इज इक्वल टू P0B XB डिवाइडेड बाई P। तो P0B कैन बी रिटन एज YB इंटू P डिवाइडेड बाई XB। ये छोटे छोटे रिलेशन खुद से डिराइव करना है आपको। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो YB वैल्यू व्हाट वी हैव 0.55 इंटू P वी हैव 400। इसमें हमारे पास XB की वैल्यू कितनी है, XB 0.35, ये कैंसिल, ये आ गया 11 और ये आ जाएगा 7, ये 4400 है ना डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमारे पास आ गया P0B का वैल्यू। दोनों आंसर आ गए अपने पास P0A और P0B। तो आसान से क्वेश्चन होता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो वी हैव राइट, we will go through that different type of solution, how solution is prepared, and in different type of solution first we have to deal with ideal solution। we all know ideal solutions are those solution which follow Raoult's law। ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की भी बात करेंगे जहां पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन और कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोर्ड में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं उससे, सो वी विल डिस्कस दैट। ओके,
ऑल द बेस्ट, टेक केयर.